A warm welcome to the Techs for Startups. I should say ladies and gentlemen because we have a single lady here. I was just thinking how to give a startup to the tech startups. So let me introduce with my friend Anthony William. I know him since 2002 when I had a project in Peshawar. I was searching out some competent individual that can become my team members. So Anthony appeared in an interview and all board members said, "Yeah, बहुत ज़्यादा ये बंदा ambitious है, इसको नहीं रखना." तो मैंने कहा जी मेरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ important होती है कि when I make any person my team member, I look one thing in him and that is only the passion. As Steve Jobs says that to create a dent in the universe, you need only one thing and that is passion. If you have a passion, you are from the startup business, I think you can do anything then. But if you don't have the passion, you do have finances, you do have services, you do have products, you can't do anything then. You'll be a failure. But if you do have the passions, then you can do anything. Anthony William is that person in my life. As I said to you, I know him since 2002, so almost 15 years. So I've seen him only doing one thing, like a very, I don't know this word that I should use for him, a very rigid guy that is living with text, eating text, playing with text. So text is his life, text is his hobby, and text is his wife. So when I use this word text his wife, it means he loves a lot the text matters. Recently I have referred in one case from Islamabad, Patriarchal International, that one of my friend has made a company. So he was giving me remarks, "Iftikhar, yaar, तूने जिंदगी में एक काम अच्छा किया मेरे साथ, ये Anthony William." I'm not praising him. These are the true words. मुझे वैसे ही आदत नहीं है फिल्मी प्रेज करने की, इसलिए शायद पनामा केस पे सबसे ज़्यादा अफसरदा नहीं. Because I want to see the things in fact and in the true spirit. So gentlemen, affiliate member हैं ICAP के, that is again a very plus point. And inshallah I hope that he is going to do wonderful things, whosoever is going to become his client. Because I have never taken any negative feedback about this gentleman. I have introduced him in Lahore in so many institutions and I'm proud that everybody said that it was an asset for us. And I'm sure today is going to prove himself a good asset. He belongs to ATCO and then definitely he has started his company here as well. And in these trainings, it's a wonderful activity. I was talking to my brother who is media coordinator to CBR. And I said that he has started to give some sort of education to the people who are going to start their business on the tax matter. So he said it's a wonderful activity because a very few people know about the tax and its importance. And I'm sure after getting this workshop, you will find yourself a bit raised individual with a helicopter effect that if you are doing a business, it's very important that you know about the taxes. And then he is going to do it for us. Mr. Anthony. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Iftikhar sir, for the lovely introduction. Welcome all. I'm Anthony Williams and I'll be giving this presentation to you on Tax for Startups. It's also going out on Facebook Live. So if you miss something, you can then watch it again on the Facebook page of Daftar Khan or our Facebook page, Tax Dosti. Because we are also starting a legal startup, so I'll be talking about that too. I'll just introduce my team members because without a team you can't do many things. Mr. Khurram Shehzad is the Chief Inspiring Officer of his company, the Idea Institute of Trainings, and he's also the Chief Inspiring Officer of our company, Tax Dosti. Iftikhar Saab is the Chief Customer Officer of Tax Dosti and my lovely wife is the Marketing and Head of Tax Dosti. So, for God's sake, don't consider her the tax.
mentioned earlier. So, She's a real wife. actually, तो डेफिनेटली आप सब पैशनेट लोग हैं और entrepreneurs हैं और यहाँ आए हैं ताकि you want to understand what this tax is all about. So this presentation is specifically designed for you and you will be a bit surprised. बिजली गई हुई है उस पर तो आपको परेशानी नहीं होगी, पंखे शंखे चल रहे हैं, होपफुली बिजली आती है वापस. So this is an interactive session. So I want to start with the question that what is the central idea when we talk about taxation, when we talk about legal matters, when we talk about things that are a bit not comfortable. So what comes to your mind? हाँ जी, क्या ख्याल है? आपका अपना शो है, प्लीज बताइए क्या ख्याल है, आपके जहन में क्या आता है जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया, व्हाट वी शुड बी फोकस्ड ऑन. जब आप टाइम लगाएंगे इस पे तो क्या ख्याल है, आपके जहन में क्या? जी प्लीज. जी बेसिक्स मतलब कि जो अकाउंटिंग है, मतलब एटलीस्ट अपनी उसकी बेसिक यानी नेटवर्क मेथड अपनी कैलकुलेट करके तो अपना टैक्स वगैरह. वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल. जब टैक्स की बात होगी, एनीवन एल्स की कोई और क्या है? So being the CEO of my company, I should understand what actually tax is. Okay. If I understand it at this very beginning, so in future I can really deal with my tax clients and help them in sorting my issues. Very nice. जी प्लीज. I would like to add. I think as optimistic as we are, if as a startup I get an offer, so I should be able to manage my taxes well. Plus, that company's concern will be my tax returns, my audit, and all the returns I've filed, and where do I stand as a company. So it's very important that we know our taxes. So in order to have a shark to invest or an angel investor, you need to know your taxes. Thank you. So that's the. So the central idea is the time you're spending to understand taxes is your wealth, or rather wealth. All of this is done in the world. All tax matters, all legal matters are done to ensure about wealth. Now, what is wealth? What do you think wealth is? How do you define wealth? हाँ जी, क्या ख्याल है? दौलत किसको कहते हैं? वेल्थ किसको कहते हैं? That's है आपके fulfill पास? your needs. ठीक है Fulfill your needs. जी. अच्छा ठीक है. I can see कि wealth जो है, चलें कोई नहीं. Let me say कि your wealth. आपका Facebook page, is it your wealth जी? आप सबके पास as a startup होगा Facebook page. क्यों? अगर है तो क्या? It's your wealth. Wealth is basically any resource that adds value to the world. ठीक है, तो वेल्थ जो है ऐसी चीज है जिससे फायदा होता है. बट वी विल फोकस व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्स मैटर्स, we'll focus about your wealth, and this is the first fundamental point you have to keep in mind. ठीक है. So regarding that, how do you make wealth? Second question. Wealth, ठीक है जी, अच्छी बात है. How do you make wealth? क्या ख्याल है? Any idea? आप क्या कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में? So providing services to the people. Exactly जी. So basically providing of services, and when you provide some goods or services, first you have to buy those goods and services. So basically, how do you make wealth? You make wealth by doing transactions, which is the second fundamental concept that you should know. That हरकत में बरकत है, यानी कि आप कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. तो transactions जरूरी है. Third and important point, which is why you are here, कि what to avoid to maintain your wealth. क्या ख्याल है? खर्चे कम करने चाहिए, क्या होना चाहिए? Source of income, you should increase your source of income. Basically, in one word, liabilities. You should avoid liabilities. And today we will be talking about specifically tax liabilities.
and 35 is not a random number. 35% is the maximum amount of income tax you will ever have to pay in a year on your income. But unfortunately, since you are not managing your tax liabilities, so maybe right now you'll be paying more than 35% of your income. मैं ये कह रहा हूँ कि 0% से शुरू होते हुए आप बहुत भी पैसे कमा लें तो the maximum the government can tax you is up to 35%. For every 100 rupees you have to pay 35. But maybe right now you for every 100 rupees you are already paying more than 35 rupees. Sure. If I were to poll or ask you that what is the most frequent asked question on Facebook in Pakistan startup groups or every group which has Pakistani startups, so this is the most common question that is asked. Okay, we want to start our startup, or we have started our startup. Should we be a sole proprietor? Should we be a partnership? Should we be a company? So, Puram sir, what do you think that how should we go about? Should we decide if we have an idea by ourselves that we should go be a sole proprietor, or if we are 2-3 persons, a team of 2-3, should we go by that and make a partnership? Or if we are very ambitious, should we make a company just like Daftar Khan people have made a company, very smart people, Ahmed, hello. ऐसे तो ये है कि क्या ख्याल है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए? एक्सप्लेन मैं कर दूंगा बिल्कुल कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है. सोल प्रोप्राइटर ये होता है कि आप बड़े अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, आपको टीम्स हायर करेंगी, या आप अपनी शॉप खोलते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं. पार्टनरशिप ये है कि यू वांट टू कि दो लोग मिल के प्रॉफिट शेयर करें, उसको पार्टनरशिप कहते हैं. हो सकता है आप 8-10 लोग हो, लेकिन दो लोग आपस में एक स्टैम्प पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि जब प्रॉफिट होगा तो हम दोनों 40-60 या 50-50 या इस तरह शेयर करें, उसको पार्टनरशिप करें. और कंपनी कहते हैं जहां आप कहते हैं कि आप एक न्यू लीगल पर्सन पैदा करते हैं कि चले हम 5 लोग तो हैं, लेकिन एक टैक्स दोस्ती प्राइवेट लिमिटेड जो है अलग होगी, वो एक अलग पर्सनालिटी होगी, तो हम सबसे अलग होगी, उसके सारे रिसोर्सेज भी अलग होंगे, तो उसको कहते हैं कंपनी. तो क्या ख्याल है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपने पूछा तो होगा ये सवाल, आप में से किसी ने, एनीवन हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू ऑन फेसबुक, तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? It depends on your vision, how big you want to go actually. Very if you nice. want to go global, you may need some more people like you who are intelligent enough, who are visionary enough, who can contribute enough into the same vision, and they can help the company to go global and to grow faster. So if you are going to start a very small company, so the best model might be sole proprietorship, so that you can go into the details, you can look after everything independently without depending on anyone. So if you want to go for a big company, then you go for partnership or then company even. Exactly. Anyone else? क्या ख्याल है आपका कि पुरब साहब ने कहा कि सोल प्रोप्राइटर ये है कि अगर आपका आइडिया है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप खुद करना चाहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर है, लेकिन आपके विजन पे वी विल बी यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी जस्ट डिस्कस. 3 चीजें हमने डिस्कस की, क्या वेल्थ, ट्रांजैक्शंस एंड लायबिलिटीज. बिल्कुल एग्जैक्टली हमने कहा. तो अगर आप वेल्थ और लायबिलिटीज के हवाले से इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखें, ये हैं बिजनेस स्ट्रक्चर्स. आप कहेंगे कि यार मुझे बिजनेस की तो जरूरत नहीं है, मैं तो स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ या मेरा तो आइडिया है. नहीं, ये जो है फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपका आइडिया, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट्स आगे जाए. तो ये जो फाउंडेशन है ये बड़ी स्टैंडर्ड है. आपका आइडिया तो बड़ा यूनिक होगा, इसीलिए तो आप स्टार्टअप है, लेकिन जो है कि कहते हैं ये जो आपको बताया जा रहा है ये स्टैंडर्ड चीज बताई जा रही है ताकि फाउंडेशन वो हो. इमारत तो ऊपर से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फाउंडेशन एक जैसी.
तो बेसिकली इन केस ऑफ वेल्थ the best I think is sole proprietor, because all the wealth you will create, who will be the owner of that wealth? You will be the owner of that wealth. When you have a business that is a sole proprietor business, so all of the profits and all of the wealth will belong to you. But on the other side, दूसरा criteria है liabilities. All of the liabilities ना आपके employees के होंगे ना आपके customers के होंगे, सारी liabilities आपकी हो, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है क्या कहते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विस देने हैं, तो आपने कोई चीज खरीदी है, जिनसे आपने जिन वेंडर से आपने खरीदी है उनको आपने पेमेंट करनी है, वो लायबिलिटी तो ठीक है। आप कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, कस्टमर उससे हर्ट हो जाता है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, वो लायबिलिटी भी फिर आपने पे करनी है। या आप वक्त पे टैक्स पे नहीं करते तो वो जो एक्स्ट्रा पेनल्टीज हैं वो भी आपने अपनी वेल्थ से पे करनी है। तो जो जो भी एक्स्ट्रा लायबिलिटीज आएंगी वो भी आपको पे करनी होगी। और एज ए सोल प्रोप्राइटर बेसिकली आपके पास दो किस्म की वेल्थ होगी, एक आपकी होगी बिजनेस वेल्थ जो बिजनेस से आपने जनरेट किया है, और एक होगी आपकी पर्सनल वेल्थ, यानी कि जो आपने या तो बिजनेस से निकाली है या पहले से आपके पास रिसोर्सेज थे, घर थे, गाड़ी था, वो सारा। तो एज ए सोल प्रोप्राइटर जब आप लायबिलिटी पे करेंगे बिजनेस की, तो आप जो है क्या कहते हैं ना सिर्फ बिजनेस के एसेट्स के थ्रू पे करेंगे, अगर आपके बिजनेस में एसेट्स खत्म हो जाते हैं तो आप अपने पर्सनल एसेट्स से भी पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सोल प्रोप्राइटर की कहानी है। तो यहाँ पे कोई है जो सोल प्रोप्राइटर है, दिल में बता दें, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। तो जो है क्या कहते हैं मे बी देयर इज सिल्वर लाइनिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर्स, थोड़ी सी आगे जाते हैं तो फिर बात करते हैं। लेकिन यहाँ कोई है जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हैं, इधर नहीं आए, ठीक है, आप भी पार्टनरशिप में, वेरी नाइस। और ऐसे स्मार्ट लोग भी हैं जिन्होंने कंपनी बनाई हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। कंपनी जो है क्या कहते हैं, कंपनी में भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन अगर आप इसको वेल्थ और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे सेफ फाउंडेशन है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। यानी कि कंपनी में आपकी जितनी भी वेल्थ है वो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं, उनमें डिवाइड होती है, और जो लायबिलिटीज हैं वो जो है क्या कहते हैं आपने उतने हद तक पे करनी है जितना कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है। जो आपके पर्सनल एसेट्स होते गए वो आपने सेफ यानी कि वो बाउंड्री है। तो सिंपल है, कंपनी बनाए, हर साल काफी सारा पैसा कमाए और उससे गाड़ियां खरीदें, घर खरीदें और अपने पर्सनल एसेट्स बनाते जाएं, और कंपनी में बस सिर्फ उतना कैश रखें कि कंपनी की जो है ना ऑपरेशंस चलती रहे, तो साइड पे आप अमीर होते जाएंगे। तो बात तो सारी वेल्थ की। आगे चलते हैं, 1 मिनट। आप में से किसी ने मतलब हैव यू एवर थॉट अबाउट दीज थिंग्स, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सर्विस? आप में से कोई मेंशन कर रहे थे कि मार्केट प्लेस आपने क्रिएट की है, ठीक है, मेरा ख्याल आपका स्टार्टअप था मार्केट प्लेस का। तो आप में से किसी ने हैव यू थॉट अबाउट मैन्युफैक्चर? जी, आपने मार्केट प्लेस का था, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल सही, वेरी 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 नाइस। ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। तो बेसिकली यू आर डूइंग मतलब इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इफ वी वर टू से कि कोई और आप में से कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करे, क्या सर्विस आप प्रोवाइड करें? We are providing energy solutions concerning diesel generators. ठीक है, क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं? नहीं, एफिशिएंट नहीं, उनके लोगों को ट्रबल शूटिंग ब्रेक डाउन करना चाहिए। अच्छा, कि कम ब्रेक डाउन हो,
Another person was there who was selling online stores. That's a marketplace. हैंडी क्राफ्ट कौन थे? सामने जो बैठे हैं ये जी जी आपने? जी जी That's a very big marketplace. एग्जैक्टली मार्केट प्लेस है। तो एज कम्पेयर टू आप जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपका कंपैरिजन किया, व्हाट डू यू थिंक हु विल हैव मोर ट्रांजैक्शंस टू डील? इन दोनों में से किसकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगी? Online store. ऑनलाइन स्टोर वाले, और वो जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कहने का मतलब ये है कि व्हाट्स योर बिजनेस प्लान, व्हाट डू यू वांट टू डू, कितनी सारी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी ऑब्वियसली बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें रॉ मटेरियल भी लेना है, फिर लेबर भी लेना है और रिसोर्सेज भी एक्वायर करने हैं और फिर प्रोडक्ट बना के देना है। जो ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं उनकी भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, लेकिन उसकी नेचर डिफरेंट है, उसकी वॉल्यूम डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप टैक्सेशन की बात करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें हैं, आपका बिजनेस प्लान और आपकी बिजनेस पर्सनैलिटी। किस किस्म का आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप, और एक्चुअली आप क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं या वो करते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी टैक्स लायबिलिटीज बनती हैं। यानी कि जो टैक्सेशन के मैटर्स हम अभी डिस्कस करने लगे हैं उसके लिए, उसको समझने के लिए आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपके जहन में होनी चाहिए, तो आप बेहतर अपनी टैक्स लायबिलिटीज को समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं। आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, लोगों ने अभी ज्वाइन किया, जी प्लीज बताएं। सर, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जी बिल्कुल। वो किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो ऑनर की कैटेगरी में आते हैं या वो किस, उनका क्या रोल है? बिल्कुल, जो किसी भी बिजनेस में जो टाइटल होता है, CFO हो गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गया, वो टाइटल खुद से तो ये नहीं बताते कि ये किस किस्म का बिजनेस है। यानी अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, एक कंपनी है तो उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, लेकिन लीगली स्पीकिंग कंपनी में डायरेक्टर्स हो और कंपनी एक इंडिविजुअल सेपरेट पर्सनैलिटी है। तो जब आप कंपनी बनाते हैं तो बेशक आप फाउंडिंग मेंबर भी हो तो आप उससे सेपरेट हो जाते हैं। आप फिर उस कंपनी में जो है ना एज ए डायरेक्टर जा सकते हैं, एज ए शेयर होल्डर, यानी आपका और कंपनी का रिलेशन हो सकता है। तो अगर कोई आपको कहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो लीगली स्पीकिंग डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं और सोल प्रोप्राइटर में सोल प्रोप्राइटर। ठीक है जी, प्लीज आप जो थोड़ा अगर कोई चीज पूछनी हो अभी आए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 फंडामेंटल पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल wealth, second is transactions, and third is liabilities. If you want to understand tax and legal matters, you have an understanding of these things, but you have to focus. We are focusing right now on these 3 things so that you can have a better idea of tax. Yeah. जी, कोई और question हो? I just wanted to confirm that private limited. What is the difference between private limited and incorporation? Exactly. You can see that here are single member company, private limited company, public limited, and listed companies. Incorporation is a process of giving birth to a company. When we say that you are incorporating, that means that you are giving founders, 2 or more people are getting together and giving birth to a separate legal entity. So incorporation is that process. That entity can be a single of the 5. जी बिल्कुल, जो सोल प्रोप्राइटर हैं वो सिंगल मेंबर कंपनी भी बन सकते हैं। उसमें ये होगा कि वो सोल प्रोप्राइटर की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी फाइनल डिसीजन भी उनका होगा, वेल्थ भी सारी उनकी होगी, लेकिन उनके पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी। तो सिंगल मेंबर कंपनी आप बना सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के थ्रू। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं जो सबसे स्टैंडर्ड है, जिसमें 2 लोग मिलके, 2 को फाउंडर्स मिलके पहले तो उस कंपनी का नाम रखते हैं और फिर उसको जो है कहते हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली उसके पहले डायरेक्टर और पहले शेयर होल्डर बन जाते हैं। और उसके बाद जो है ना कंपनी लॉ में एवरीथिंग इज एक्सप्लेन कि मीटिंग कैसे होगी,
कौन इलेक्ट होगा, कौन कितनी देर तक रहेगा, तो कोई डिस्प्यूट या कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टनरशिप लॉ में ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं दी गई और सोल प्रोप्राइटर में तो डेफिनेटली नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आपके आपस में डिस्प्यूट्स ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो कि किसका कितना शेयर है, पैसे अगर आए तो किसको कितना बेनिफिट मिलना है या कितने लोग हायर करने हैं, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, तो फिर कंपनी जब आप बनाते हैं तो आपको सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस साथ मिल जाते हैं। आई एम सेइंग कि इफ यू हैव अ सॉलिड legal structure, then you can focus on your customer, your product, your markets. ठीक है, तो आज का मकसद ये है कि आपको बताएं, टैक्सेशन की बात हम कर रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ टैक्सेशन बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विल डिटरमिन योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, और जी प्लीज कोई क्वेश्चन हो? अहमद साहब कोई क्वेश्चन? नहीं? अच्छा ठीक है, अहमद साहब CFO हैं दफ्तर खान कंपनी के, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बिजली नहीं दी लेकिन बाकी बैठने की जगह और सारी चीज़ें दी हैं। तो ये है कि अभी होपफुली थोड़ी देर में बिजली भी दे देंगे। ठीक है सर। और ये क्या, ये पानी? ये पानी अच्छा ये है, ये वाली लाइट अगर थोड़ी ऑफ कर दें तो अच्छा होगा, बचत हो जाएगी। आप ये कि लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, वो लिमिटेड कंपनी से लिमिटेड है। बोर्ड ऑफ एडवाइजर जो होते हैं वो आपकी एक वर्ड होता है क्या अनऑफिशियली, वो क्या चीज़ होती है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो क्या होता है मुझे ज़रा बताते हैं। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, तो कंपनीज में जो है ना, कंपनी का मैंने कहा ना कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंपनी जब आप बनाते हैं आपको आ जाती है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स दैट सिंस द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स मे बी सेपरेट पीपल, इनिशियली तो आपकी कंपनी में आप ही शेयर होल्डर, आप ही डायरेक्टर, लेकिन जब आप गूगल के साइज पे हो जाएंगे तो फिर आप अलग हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स अलग हो जाएंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है कि रूल्स हैं कि प्रॉपरली कैसे मैनेजर्स जो है ना एक्ट करें। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल इट सेज के आपके पास डायरेक्टर्स होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हों या बाहर की कंपनी से लोग आपके बोर्ड पर हों ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ये सब चीज़ें हैं। मीन्स के आपको जो है क्या कहते हैं, अभी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर मे बी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग योर कंपनी राइट नाउ, यू आर मोर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग योर प्रोडक्ट या मोर फोकस्ड ऑन योर कस्टमर। बट if you take in consideration all of these at this early stage, if you think about it and discuss with us, then I'm sure आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए going forward liabilities कम हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नॉन प्रॉफिट के बारे में। जी बिल्कुल, नॉन प्रॉफिट जो है is a very interesting company, not for profit, and since we have people from Social Innovation Lab, so basically when you want to have all the formalities and benefits of a company in your non-profit organization, यानी कि आपका एम ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, हमारी मीटिंग्स हों, एनुअल जनरल मीटिंग्स हों, हमारे जो है कहते हैं वोटिंग हो, तो आप जो है वो प्राइवेट कंपनी की तरह होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी से थोड़े उसके रूल्स डिफरेंट हैं। तो ये जो है जी प्लीज। Can you give an example of a company which is not फॉर प्रॉफिट, या शौकत खान इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लिखा जाता, और वो सेक्शन 42 जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का लॉ है उसमें वो उसके मुताबिक बनती है, और उसमें ये होता है कि आपकी हेडेक कम होती है, आपको सारी चीज़ें, तो ये है नॉन फॉर प्रॉफिट। लेकिन आप में से किसी ने ये पब्लिक लिस्टेड या पब्लिक लिमिटेड या लिस्टेड का नहीं पूछा। आफ्टर ऑल सर वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, एंड वेल्थ कम्स, लेकिन सर विद ग्रेट पावर्स कम्स क्या कहते हैं जी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विद ए लिस्टेड कंपनीज कम्स अ लॉट ऑफ वेल्थ। ठीक है जी, तो दिस इज जो है क्या कहते हैं फर्स्ट सेशन जी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। नॉन फॉर प्रॉफिट में कोई बता दें कि दो किस्म की होती है, एक पब्लिक सेक्टर में होती है जो नॉन फॉर प्रॉफिट होती है, जो एक आप लोग बनाते हैं, एक बाउंड्री होती है, एनजीओ की बाउंड्री नहीं होती है ऑपरेट करने, राइट? दोनों के थोड़ा सा
थैंक यू सर। आप में से सोशल बिजनेस जो है, अगर क्या कहें, कितने लोग सोशल बिजनेस करें, यानी दोज बिजनेसेस दैट विल अर्न प्रॉफिट, लेकिन वो चाहते हैं कि एक इम्पैक्ट भी हो, जैसे मरियम जो आपकी को फाउंडर हैं, तो आप में से कौन कौन करे? आप लोग जो हैं सोशल बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, आपका भी सोशल बिजनेस या किसी को गर्मी में जनरेटर का फायदा? जी, सोशल बिजनेस बहुत बड़ी सर्विस है जी। आप लास्ट में जो है, हाँ अहमद, कुछ सोशल, आप बहुत ज़्यादा सोशल बिजनेस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपसे तो फायदा है, बल्कि मैं रेकमेंड तो कराची वाले, इस्लामाबाद वाले जो भी देख रहे हैं वो भी आए। दफ्तर खान बहुत सोशल बिजनेस है और फ़ायदा है जी। सर, आप लास्ट में जो है कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आपने थोड़ा मिस किया। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पेज से जी जी, या WhatsApp पे टेक्स्ट मैसेज थ्रू, तो you're delivering yourself or you are delivering to the post office, cash on delivery या कैसे advance आए, उसमें what are the chances of taxation, what are the benefits if I register? जी जी, बिल्कुल। मेरा ख्याल है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन यानी वर्चुअल, फिजिकल सिर्फ ये है कि यू आर मूविंग your goods to the customer through a Facebook page. So do I have to pay the taxes? Do I have to register? What kind of? So that is the ideal question, and this presentation will answer that. I have a personal NDA. When I was employed somewhere to return my taxes. And if I register, should I be using that NDA or should I be registering a separate business and separate name? हाँ, बिल्कुल ठीक है। Basically, you can use the same NTN, but let me answer it in a more structured way. So, the take home from the last session was, मैं तो चाह रहा था कि आप और सवाल भी पूछे, लेकिन most probably शायद अभी अब आप पूछेंगे। The kind of person you are, that is sole proprietor, partner or company, plus the kind of operations you do, manufacturing or service, both combined will determine your tax liabilities. And here is a suggestion. This slide is more of a suggestion than or advice, that we've been talking about wealth. So this is what we at ADCO Chartered Accountants are suggesting, that this is how you are creating wealth. You come up with an idea, then you maybe discuss with someone or you work on that idea. Then when you have a product or you are well aware of a customer, that is your startup stage. So already you have created wealth. How? Maybe at this stage you may not own that wealth, but I suggest that if you are creating a physical product or something like hardware or something, you may think of patenting it, so that a patent in itself is an asset, a wealth. Or maybe if you come up with a really unique online idea, you could patent that or trademark that idea. So even at the idea stage, if you take the help of law, you can preserve or control your wealth, because there is no doubt that now from very early age you start producing wealth. The question the answer I'm trying to give you is that you should focus on owning that wealth, and taxation and legal matters are discussed in that context. So from idea to startup, now you have a startup, you may have an individual person, you may be an individual person, and you start your startup with a business name. Okay? So you'll have your individual name as well as your business name, and that business will, for example, आपने जैसे एग्जाम्पल दी कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट देना शुरू हो गए, आपका एक स्टार्टअप शुरू हो गया। अभी वो बिजनेस शायद उस तरह नहीं बना। बिजनेस स्टेज मीन्स व्हेन यू हैव प्रॉपर रेवेन्यूज, आपको मंथली आपके रेवेन्यूज जनरेट होना शुरू हो गए, आपके पास आपका सेल्स का, कस्टमर्स का सिस्टम है, वेंडर परचेजेस का सिस्टम है, आपके पास एक बेसिक अकाउंटिंग का सिस्टम आ गया, आप अपनी सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस सारी चीजें रिकॉर्ड करें, तो दैट स्टेज इज योर बिजनेस स्टेज। दीज आर माई डेफिनेशंस, यू मे डिफर, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया। ठीक है? देन कम्स द कंपनी स्टेज। Company means that you incorporate yourself as a company, you formalize all of the things,
ठीक है, एंड देन कम्स द IPO स्टेज। तो जस्ट एज अ जनरल क्वेश्चन, IPO से कोई आइडिया सुना है? IPO क्या चीज होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक हो गया जी। तो क्या करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? जी, शेयर्स अपने पब्लिक ऑफर करते हैं। आपकी वेल्थ जो है आपके कंपनी के एसेट्स में, वो एसेट हो सकता है कि आपका जो आपके फिजिकल एसेट्स हो, बिल्डिंग वगैरह कुछ हो, उन एसेट्स को आप पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं इन द शेप ऑफ, पार्टनरशिप में भी शेयर्स होते हैं लेकिन वो पार्टनर्स के दरमियान होते हैं, सोल प्रोप्राइटर में भी शेयर्स होते हैं लेकिन वो 100% ओनरशिप उनकी होती है। तो हम बात करें कि ऑल द एसेट्स यू प्रोड्यूस, उनकी जो है ना ओनरशिप आपके पास होती है और उनकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। फ्रेंच इन द सेंस कि अगर आप, मेरी कहना चाहूँगा इस तरह कि सपोज करें अभी आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है आपके पास, ठीक है ना जी। वो जो नोट है वो आपकी रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करें कि गलती से आपकी जेब में जो 20 रुपीज का नोट है वो एक्चुअली 5000 का नोट है, तो क्या हुआ? आपकी जेब में आपने सोचा कि मेरे पास 20 रुपीज का नोट है, और से आपने देखा तो वो भी ब्राउन था, वो 20 रुपीज वाला भी ब्राउन था, तो क्या हुआ? आपके पास 5000 की एक वैल्यू बनाते हैं आपकी कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर एक साल में, क्या ख्याल है सर आपका, हाउ मेनी, कितना इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आप कितना डिलीवर कर सकते हैं? एग्जैक्टली, तो आपकी जो है क्या कहते हैं 1 to 2 मिलियन उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू की सूरत में भी जनरेट करेगी और वो जो एक सारा बिजनेस प्रोसेस बनेगा जिससे आप, जो लोग फिर बाकी लोग कॉपी भी कर सकते हैं, तो ये आपकी कंपनी की वैल्यू है। तो मैं भी शायद जिस तरीके से आप बिजनेस करें तो उसकी वैल्यू है 5 बिलियन। प्रोग्राम चलता है नियो न्यूज पे, आइडिया करोड़ों का, ठीक है जी। आपने से किसी ने देखा? जी, अच्छी बात है, सबने देखा। तो वहां पे एक्सपीरियंस लोग बैठ के आपके बिजनेस के एसेट्स यानी आप वेल्थ की वैल्यू लगाते हैं कि वो कहते हैं कि जी आपकी कंपनी की इतनी वैल्यू है तो उसमें से हम इतना शेयर जो है ना, अच्छा जावेद कोई उम्मीद है बिजली आने की? सर 7 मिनट कह देते तो अच्छा। बहुत ऑनेस्ट बंदे, इस तरह का CFO आपके पास भी एक होना चाहिए हर काम, ठीक है। तो एट दिस स्टेज आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू taxdosti.com. taxdosti.com is a legal startup and we are in the a website which will help you according to the stage you are, ठीक है। जिस स्टेज पर आप हैं, सपोज रिलेटेड कोई टैक्स मैटर्स हैं या आपका स्टार्टअप स्टेज है, तो आप जानना चाहते हैं कि उस पर मेरे कोई लॉज रेगुलेशंस हैं कि नहीं, तो इस स्लाइड के बाद तो मैं वो सब आपको प्रेजेंट करूंगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, वोंट इट बी नाइस कि उनके पास एक वेबसाइट हो रिगार्डिंग टैक्स मैटर्स, उनको बता सके कि जो है क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहें, समझते हैं ये जो मैंने बताया है किस स्टेज पर आप हैं। आइडिया स्टेज पर हैं, तो यहाँ पर आइडिया स्टेज पर या स्टार्टअप स्टेज पर हो जी, स्टार्टअप स्टेज पर आप हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या क्या है जब आप कहते हैं स्टार्टअप स्टेज? प्रोटोटाइप रेडी है, टेस्ट करें और लॉन्च, ठीक है। प्रोटोटाइप रेडी हो गया और उसको लॉन्च करें, बिल्कुल बड़े आइडिया जो है ना फोकस है। अभी बाकी चीज़ों पे फोकस करने का है तो टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है या शायद जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं क्या आपका आइडिया है। हाँ जी, और स्टेज पे क्या करना है आप इससे क्या क्या स्टेज पे है जहाँ पे वो ये देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। तो बिजनेस स्टेज इसलिए क्योंकि नाउ आपकी ट्रांजैक्शन, लेकिन आपने ट्रांजैक्शंस क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि आपको बेनिफिट यानी आपको वेल्थ भी ज़्यादा मिलेगी। आपको होता कि आपकी सर्विस लोगों को चाहिए, लोग फ़ोन करते हैं आपको। लेकिन सर आपने सोचा कि आप अपने बिजनेस को इतना स्केल अप कर लें कि जो है कहते हैं आपने सपोज करेंगे मे बी आपने 1 करोड़ रुपए बिजनेस
बिजनेस में लगाया है और आप लिस्टेड कंपनी बन जाए यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चले जाए और आपने सोचा कि क्या कहते हैं वहाँ जाके पब्लिक को शेयर्स बेचें और वही शेयर्स जो मे बी आपके लिए तो 1 करोड़ के थे जब आप पब्लिक को बेचने जाए तो आप 5 करोड़ कर बेचें तो आप भी नहीं हो जाए आपके और कुछ भी हो जाए वो क्या है अभी नहीं सोचा लेकिन सोचना चाहिए। तो मैं जो है मुझे इंस्ट्रक्शन भी आई है कि जी मैं रेंज से बाहर हूँ। आपको एक अच्छी न्यूज़ आई वांट टू गिव यू गुड न्यूज़ दैट ऑन मंडे, आज सैटरडे है, ऑन मंडे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU with the Pakistan Stock Exchange, and that memorandum was that now startups can go directly to Pakistan Stock Exchange and raise capital from the public, ठीक है, which means a lot. इसका मतलब है कि अगर आपका ऐसा आइडिया है, आप खासतौर पे जो सोशल बिजनेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को अगर वो अपील करेगा आपका आइडिया, तो आप जाके पब्लिक को डायरेक्टली पब्लिक से फंड्स रेज कर सकते हैं और वो आपको पैसे देंगे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके आइडियाज के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये जो मैंने सिचुएशन बताई थी, आज तक पाकिस्तान में अभी तक ज़मीन.com से लेके करीम और ये सब प्राइवेट इक्विटी रेज करते हैं, यानी कि ये प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं। एक एग्जांपल आइडिया करोड़ों का है, वेयर यू सी कि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, नेटसोल, क्रेस्ट वेंचर्स और कंपनीज के, और वो प्राइवेट पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अब आप जो है जाके पब्लिकली जो है ना पैसे रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी वेल्थ की बात हो गई। पब्लिकली ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे और आपके शेयर्स की प्राइस होगी वो पब्लिक पे करेगी। प्लीज इधर आ जाए। ठीक है, नाउ वी कम टू द पॉइंट वेयर विल सी, जैसे आपने सवाल पूछा कि हाउ विल टैक्सेशन अफेक्ट मी, तो 3 फंडामेंटल पॉइंट्स मैं दोहरा देता हूँ। द काइंड ऑफ पर्सन, यानी सोल प्रोप्राइटर या कंपनी आप हैं, द काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू डू, ये these two determine your tax liabilities. Now when we say taxation, we are talking about 3 major tax laws of Pakistan, and one is the Income Tax Ordinance 2001, जिसको IT कहते हैं। तो ये तो आप सिर्फ अब भी IT वाले सब लोग हैं, हम भी IT वाले सब लोग हैं, सब ठीक। सेकेंड है सेल्स टैक्स एक्ट, जिसको GST कहते हैं। जी कुछ कह रहा है प्रोजेक्टर? जी हो गया। अच्छा इसको लग रहा है। अच्छा, थर्ड है दी पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट ऑन सर्विसेज। जो पंजाब लिखा है इसका मतलब है बेसिकली प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन services, which means that if you are in Sindh, it will be Sindh sales tax on services. So the first 2 laws are implemented by the Federal Board of Revenue, FBR, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी बातें भी होंगी आपको FBR के लोकल ऑफिस जाना होगा, या फॉर एग्जांपल जैसे हमें एज ए कंसल्टेंट हायर करना होगा तो हम भी वहीं जाएंगे। जब मैं जाता हूँ माल रोड पे टैक्स हाउस जो हेडक्वार्टर्स है FBR का लाहौर में, तो मैं अपनी गाड़ी में नहीं जाता, मैं करीम में जाता, इसलिए क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती और जो है कि कहते हैं वहाँ टैक्स ऑफिस में टाइम भी बहुत लगता है, 2, 4, 5 घंटे लगते हैं। मैं करीम में जाता हूँ, वहाँ से उतरता हूँ काम करके, फिर करीम पकड़ता हूँ, फिर वापस आता। इनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हमने यहाँ। अच्छा, इनके रिप्रेजेंटेटिव FBR के जो है बुलाए। वैसे भी वहाँ गाड़ी दिखानी नहीं चाहिए इसको। हाँ जी, पड़ेगा बिल्कुल ऐसी बात है। खासतौर पे ऑडी शॉडी हो तो बिल्कुल फिर आपको ऑडी दिखा दी तो फिर तो नहीं, ये सब मजाक की बात है। टैक्स वालों की पावर कोई होती नहीं है देखने से, हाँ अगर उनके हाथ कुछ लग जाए तो फिर जो है हो सकता है, तो आप अपनी गाड़ी की चाबी ना देना ना उनको, ठीक है। तो बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और पंजाब सेल्स या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, जो एक नई अथॉरिटी बनी है कुछ साल ही में,
वो जो है ना उसको इम्प्लीमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा जो लॉकर है, इसमें मैं यहाँ दफ्तर खान में रेजिडेंट हूँ, तो ये जो मेरा लॉकर है इसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हैं टैक्स लॉ। तो पहले मैंने सोचा था उसकी फ़ोटो मैं करूँगा, लेकिन मैंने कहा कि स्लाइड ज़ाया नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई भी टैक्स लॉ जो मल्टीपल वॉल्यूम्स पे होता है, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को अगर आप ब्रेक डाउन करें, तो मैं लकी रहा कि 20 ईयर्स से चूँकि लॉ पढ़ाया या प्रैक्टिस किया, तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपसे हर किस्म का टैक्सेशन लॉ जो है क्या कहते हैं डिमांड करेगा। अभी हमने ये बात नहीं कही कि कौन सा लॉ आप पे अप्लाई होता है, हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे अभी इस बात के बाद, तो फिर जो है ना हम कह सकते हैं कि, लेकिन किसी भी टैक्सेशन लॉ में ये 4 चीज़ें हैं जो लॉ आपसे मांगेगा। वो कहेगा कि अगर लॉ आप पर अप्लाई होता है, और यहाँ पर हम आते हैं आपके कंसल्टेंट्स, क्योंकि मे बी लॉ के अंदर कोई ऐसा रास्ता है जो लीगल रास्ता है जो हम आपको बता सकें जिससे फॉर द टाइम भी लॉ आप पर अप्लाई ना हो। लेकिन अगर आप पर जब इवेंचुअली लॉ अप्लाई हो जाता है, आइडिया स्टेज पे नहीं हुआ, मे बी शायद स्टार्टअप स्टेज पे नहीं हुआ, तो जब आप बिजनेस स्टेज पे स्टार्ट में रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, तब ज्यादातर टैक्स लॉज जो है ना आप पर अप्लाई हो जाते। ठीक है, तो उस तरह जो है क्या कहते हैं आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है उस इनकम टैक्स लॉ में, सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर करना, उस पर बात करेंगे। फिर जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो एवरी मंथ, क्वार्टर और एनुअली यू हैव टू रिपोर्ट अबाउट अ फ्यू थिंग्स टू दी टैक्स अथॉरिटीज। वो फ्यू थिंग्स क्या हो सकती हैं, तो आप खुद गेस कर लें कि इनकम टैक्स में वो क्या इंटरेस्टेड होंगे। क्या ख्याल है सर, वो क्या इंटरेस्टेड होंगे आपकी इनकम में और आपकी वेल्थ। इनकम टैक्स लॉ में आप जो है क्या कहते हैं एनुअली एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो रिपोर्ट, इसी तरह सेल्स टैक्स में होता है। दूसरा जो है ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, बस हैं यही 2 स्टेप्स, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को मे बी जो आपने उनको रिपोर्ट किया है उसका वो यकीन ना करें या एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी वो आपका ऑडिट करें, तो जो है क्या कहते हैं फिर ये 3rd स्टेप आ जाता है। ऑडिट हर एक शख्स का नहीं होता। पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे 50 मिलियन लोग पाकिस्तान में इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन रिटर्न 1 मिलियन लोग फाइल करते हैं। तो टैक्स दोस्ती हेल्प करेगा उन 49 मिलियन को भी टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो उन 1 मिलियन में से इस साल 93,000 लोगों का ऑडिट हुआ। 93,000 लोगों से कहा गया था कि उन्होंने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ टैक्स रिटर्न में लिखा है उसको काइंडली आके एक्सप्लेन करें और डॉक्यूमेंट्स दें, उसको प्रूफ करें। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिट होता है। जी सर, आपका नहीं होगा ऑडिट। सर अगली स्लाइड, उनका ऑडिट ही नहीं हो सकता जो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। मेरा ख्याल है एक पोल ले लेते हैं कि जो 49 मिलियन जिसमें आप लोग भी शायद शामिल हैं, वो फायदे में है या वो 1 मिलियन बेवकूफ लोग जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो किसी ने सुना है फाइलर नॉन फाइलर की स्टोरी? जी, फाइलर नॉन फाइलर का सर सुना आपने कोई? जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और नॉन फाइलर्स कौन होते हैं आपके ख्याल से? जो सुस्ती में फाइल नहीं करते। आइडियल दी है, किसने दी जी डेफिनेशन? जो सुस्ती में फाइल नहीं करते, तो जब वो बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, जब वो गाड़ी का टोकन लगाते हैं, जब वो जो है अपना कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको लाखों रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर नॉन फाइलर 4 लाख पे करता है और वो सारा टैक्स चला जाता है, वापस नहीं आता, और फाइलर जो है वो 2 लाख पे करता है और वो 2 लाख अगले साल उसको रिफंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 49 मिलियन सर शायद पहले प्रॉब्लम मतलब अच्छे थे, स्मार्ट थे, लेकिन फॉर द पास्ट 2 years थैंक्स टू मिस्टर इजाक डार, फाइलर एंड नॉन फाइलर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अदर वर्ड्स आज के टॉपिक के लिहाज से देयर लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड।
तो इट्स बेटर कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें. उसमें मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी गेटिंग बैक सम टैक्सेस एंड यू विल हैव पीस ऑफ माइंड कि जी आपको वो चीज़ आ. ठीक है, एक सिग्नल यहाँ से भी मिल गया. अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछें. फ्लो, आई होप कि आप फ्लो फॉलो कर रहे हैं कि आपने वेल्थ जनरेट करना है अपने बिजनेस के थ्रू, अपने स्टार्टअप के थ्रू, और उसको रोकने के लिए बहुत सारी लाइबिलिटीज आपको रोक सकती हैं उस वेल्थ जनरेट करने से या कंट्रोल करने से. उनमें से टैक्सेशन की जो लाइबिलिटी है वो नंबर 1 है, क्योंकि अगर बिजनेस खत्म भी हो जाए तो फिर भी सबसे पहले आपने अपने जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे करें. मैं ये बात कर रहा था कि जब आप किसी भी टैक्स लॉ को एनालाइज करते हैं तो वो आपसे पहले 2 स्टेप्स मांगता है जिसको हम कहते हैं टैक्स कंप्लायंस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स लॉ किस पर अप्लाई होगा. तो इनकम टैक्स लॉ जो है वो एक डायरेक्ट लॉ है, यानी डायरेक्ट टैक्स है, और जो इनकम कमाता है उसको ही इनकम टैक्स पे करना होता है. ये चीज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा. इनकम टैक्स लॉ इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड यू हैव टू पे इफ यू जनरेट इनकम. तो सर आप जो है जनरेट कर रहे हैं इनकम, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कह रहा, लेकिन कहने का मतलब है कि आप पर टैक्स लॉ जो है इनकम टैक्स लॉ अप्लाई होगा इमीडिएटली नहीं, एवरी फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, आपका 1 जुलाई 2016 से लेके 30 जून 2017 तक एक टैक्स ईयर है. इस दौरान अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा. तो रजिस्टर आप कैसे होंगे सर? रजिस्टर आप ऐसे होंगे कि आप FBR की वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां टॉप पे आयरस लिखा होगा. आप आयरस पे क्लिक करेंगे तो एक और वेब पेज खुल जाएगा. वहां पर आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड, और नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन. तो अगर आपके पास NTN है तो फिर आप इनरोलमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका फोन नंबर, ईमेल पूछेगा. आप उसमें डालेंगे तो आपको कुछ कोड्स आएंगे और फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा जैसे आपका ईमेल पे आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं. तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल को अब NTN बनाना है. तो नहीं जी, इंडिविजुअल को NTN नहीं बनाना. इंडिविजुअल का जो CNIC है नंबर है वो ही उसका NTN है. तो जब आप आयरस में लॉग इन होंगे तो आपको आपका NTN नंबर नहीं चाहिए, आपका ID कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा और आपका पासवर्ड वो होगा जो आपको उस प्रोसेस से मिला होगा. तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप अलग से टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत, किसी कंसल्टेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है, उनका CNIC ही वो है. इसका मतलब है कि अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं तो तब भी आपको NTN लेने की जरूरत नहीं है. मेरा ख्याल ये आपका क्वेश्चन था कि जो है ना, मुझे NTN मेरा है पुराना, जब मैं जॉब कर रहा था. आप उस NTN को अब आप आयरस में आपका ID कार्ड ही आपका NTN है और आपकी टैक्स रिटर्न एज ए सोल प्रोप्राइटर होगी और उसमें ID कार्ड ही आपका NTN है. अगर आप पार्टनरशिप और कंपनी को सेटअप करेंगे तो आपको फिर टैक्स ऑफिस जाके, फिजिकली जाके, पार्टनर्स को या डायरेक्टर्स में से किसी को जाके वहाँ NTN बनाना पड़ेगा. प्रोसेसेस बहुत सिंपल हो गए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अब एक, क्योंकि IT ज़्यादा यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऑटोमेट कर दिया प्रोसेस. तो आप जाके वहाँ से आप अपना NTN ले सकते हैं. ये है पहला पार्ट. ठीक है, किसी को याद है कि पहला पार्ट किस पे अप्लाई होगा? इनकम टैक्स किस पे अप्लाई होता है? एज अ स्टार्टअप आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए अपनी आपको या अपनी कंपनी या पार्टनरशिप को NTN पे. तो मेरी सजेशन ये है कि आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए जब आप रेवेन्यू जनरेट करने शुरू कर दें, जब आप इनवॉइस बना रहे हैं. जी. So, what is the slab on which the income tax is applicable? Like, how much profit should the company be making for income tax is applicable? Exactly. Basically, we are talking about registration. So, for registration, it's a good practice to register irrespective that right now you have earned anything or not, or maybe you earn nothing in the coming year, but still you have to register your business for income tax once your startup is going to generate them. Then once
your startup is registered as an individual or the partnership, then comes the question of reporting. Point number 2 कि आप गवर्नमेंट को अपने डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि अब आप रजिस्टर तो हो गए, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर हो गए हैं तो किसने इनकम टैक्स फाइल करनी है? तो इंडिविजुअल ने भी करनी है, पार्टनरशिप ने भी करनी है और कंपनी ने भी करनी है। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। एंड इंडिविजुअल जो है बिल जो है अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न तब फाइल करेगा, मतलब कंपल्सरी होगी, जब उसके पूरे साल का बिजनेस प्रॉफिट 400,000 यानी 4 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। और एक दो टेक्निकल चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन बेसिकली एक जनरल स्टैंडर्ड रूल ये है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप जो है 400,000 से ज्यादा कमाएंगे तो आपने अपनी उस साल में तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी। और पार्टनरशिप और कंपनी में एज सच ये रूल नहीं है। जब आपकी पार्टनरशिप हो या जब अपनी कंपनी हो, या आप इस तरह कह लें कि जब इंडिविजुअल और आपका बिजनेस या पार्टनरशिप हो तो 400,000 से ज्यादा जब आप कमाएंगे तो आपने टैक्स पे भी करना है और अपनी रिटर्न भी फाइल करना है। लेकिन जब आप कंपनी है और मे भी आप 0 रुपीज कमाते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते या लॉस करते हैं, तब भी आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी। टैक्स रिटर्न का मतलब कि वी हैव टू टेल देम कि हमें लॉस बनाया है, टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप आईआरएस में जाके पूरा एक फॉर्म है वो आप फिल आउट करेंगे, जिसमें आप उनको बताएंगे कि इतनी आपकी सेल्स थी, इतने आपके एक्सपेंसेस थे और ये सारे। जो नॉर्मली अभी चूंकि इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है आईआरएस, तो आप जैसे कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, लेकिन वहाँ बात हो रही थी कि टैक्स दोस्ती विल हेल्प के अगर वो उसमें भी आपको गाइड कर सके कि कौन सी फील्ड में आपने कौन सी चीज डाली। लॉस होगा तब भी हमें टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अहमद साहब इसलिए कहते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि कंपनी चाहे प्रॉफिट करे लॉस करे तो जो है ना टैक्स रिटर्न फिर भी साल के बाद फाइल करनी है। टैक्स रिटर्न फाइल तो कर लेंगे लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको लॉस है तो नहीं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपसे बहुत सारा टैक्स जो है ना साल के दौरान विद होल्ड हो जाएगा, तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप हैरान होंगे, लेकिन 70 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो आप मोबाइल है, गाड़ी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उसके अलावा बिजली है और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है। आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ बैठे आपको बताएंगे, जिस पे आपसे एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स आपने सुना होगा डिडक्ट होता है। तो एज एन इंडिविजुअल या एज ए पार्टनरशिप अगर आप रिटर्न फाइल वॉलंटरी भी करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आपने शायद साल में तो 3 लाख कमाए, यानी कोई टैक्स तो आपने पे नहीं करना, लेकिन वो जो 10,000, 50,000 या मे भी ज्यादा आपसे कटा है वो आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ले आएंगे कि जी ये मुझे वापस दो। अब वो वापस होता है कि नहीं वो एक अलग डिस्कशन है और फिर वो आपसे जो है ना बातें होंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिटर्न फाइल करने के ये फायदे हो जाते हैं कि आप एक फाइलर बन जाए। जी Realistically speaking, what is the chance? How does the government refund? Because I've never filed for taxes. ठीक, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर आपके टैक्स अमाउंट से डिडक्ट कर लेती है या वो कैश ट्रांजैक्शन होता है जो आपके अकाउंट में होता है? हाँ, नॉर्मली बिल्कुल प्रैक्टिकल बात यह है कि एज एन इंडिविजुअल या अगर आपका रिफंड लेस देन 100,000 है तो नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली आपको कैश रिफंड नहीं होता। आप ये जरूर कर सकते हैं कि उसको अगले साल अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है, डेफिनेटली आपको ग्रोथ के लिए एम कर रहे हैं तो अगले साल आपका बिजनेस थोड़ा बेहतर होगा, तो इस साल अगर टैक्स आपने नहीं भी पे किया तो नेक्स्ट ईयर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक केस में जैसे मैंने अपनी वाइफ की पिछले 4 साल से रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो इनकी कोई 70-80,000 तक आप एक्यूमुलेटिव टैक्स रिटर्न बन गया, रिफंड बन गया, तो 100,000 जैसे ही बनेगा तो 5वें साल में फिर 5 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो 5 ईयर्स में क्लेम कर लेंगे तो लाख रुपए अगर आपको मिल जाए या लाख नहीं तो उसमें से 70,000 मिल जाए, सर बुरा तो नहीं? ठीक, तो तब मतलब मीन्स के है, लेकिन नॉर्मली छोटे जो रिफंड्स हैं उसको आप आगे एडजस्ट करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स लॉ जो है वो आप पर एप्लीकेबल है जब आप इनकम जनरेट करेंगे रेवेन्यू, लेकिन अगर आप इनकम जनरेट नहीं भी करते
तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर बन सकते हैं। फाइलर बनने का ये होगा कि बहुत सी ट्रांजैक्शंस पे या तो आपसे इनकम टैक्स नहीं कटेगा या कम कटेगा। कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी। से ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जी और दे हैव अर्न एक्स प्रॉफिट, ठीक है, दे विल हैव टू फाइल द टैक्स ऑन एज एन इंडिविजुअल और एज ए पार्टनरशिप। ठीक है, आप अगर मुझे बताएं कि आप ये जो सेइंग दैट एज ए बिजनेस जो है, मतलब आप सेट अप योर बिजनेस एज अ पार्टनरशिप, तो द पार्टनरशिप बिजनेस विल फाइल इट्स रिटर्न, ठीक है, ऑन द होल ऑफ द जो है कहते हैं अमाउंट, जितनी भी आपने सेल्स की, जितनी भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं और जो नेट प्रॉफिट है उस पर आपने टैक्स पे करना है। फिर जब टैक्स पे कर देंगे तो वो पैसे आपके वाइट हो जाएंगे और वो जो है फिर पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। पार्टनर्स उस पर दोबारा इनकम टैक्स पे नहीं, इट मीन्स के एज ए यूनिट, एज ए कंपनी पे करना होगा। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं एज एन AOP, एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपने टैक्स पे करना। अगर 400,000 से ज़्यादा है आपका जो है साल का एनुअल प्रॉफिट, तो आप मतलब ये सिंपल टर्म्स में आपको पता है लॉ में जगह जगह पे कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो तो फिर इंडिविजुअल टॉक में हो सकते हैं। जनरल रूल ये है कि 400,000 से ज़्यादा आपने कमाया तो थोड़ा थोड़ा आप टैक्स पे करें, क्योंकि आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बैठे हैं, तो हम यहाँ सैलरी या वो बात नहीं करें, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करें कि जब आप जनरेट करेंगे एज ए सोल प्रोप्राइटर। क्वेश्चन, सो फॉर कंपनी पार्टनरशिप आपने क्या टैक्स रिटर्न हमेशा करना होगा, चाहे लॉस में, कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड में आपने चाहे लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न्स, एंड आफ्टर व्हाट स्लैब इज द 35% tax applicable, like above 400,000 rupees you get the 35% tax? नहीं, 35% शुरू की प्रेजेंटेशन में 35% जो था बताया गया, बता रहे थे कि that's the maximum amount. तो for an individual and partnership it starts something like this कि जब आप 400,000 से 500,000 तक कमाते हैं तो वो जो 400 से 500,000 के दरमियान है उस पर आप 2% या 5% पे करते हैं। फिर 500,000 से 7.5 लाख के दरमियान तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वो टेबल्स बने होते हैं, उसको आप हाँ बिल्कुल आपको बता देंगे कि वो जो है आप उस तरह उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी पहले आपका टैक्स रेट 1% बनेगा, 2%, फिर आहिस्ता 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 आप आगे, ठीक है। अभी आपको इसके इस वाली स्लाइड के बाद थोड़ी सी भागना दौड़ना एक्सरसाइज है, तो ठीक है सर इजाजत है आपकी? जी ठीक है। तो मुझे 4 वॉलंटियर्स चाहिए होंगे उस साइड, इस साइड पे तो जगह नहीं भागने, ठीक है जी। कॉल वॉलंटियर, 4 वॉलंटियर्स जो भाग सकते हो, हम तो भाग नहीं सकते। नहीं FBR से नहीं भागना, FBR से नहीं भागना, हम यहाँ आपको बताने के लिए कि हम, लेकिन 4 लोग कौन, ठीक है जी, क्या ख्याल है? FBR से भागना सिखाएंगे बाद में। आपको सिखाएंगे, हाँ। और एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत नंबर्स में इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि हर बंदे को नंबर्स में इंटरेस्ट हो, तो वो है। क्या ख्याल है जी? आप जो ब्लू शर्ट में कर लें वॉलंटियर, थोड़ा पीछे चले जाए आप, नहीं आपसे पीछे जो बैठे वो हो गए, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो वॉलंटियर हैं ही हैं। एक लेडी अगर हमें मिल जाए वॉलंटियर, ठीक है जी, पीछे आप चले जाएं और यहाँ से कोई कर लें वॉलंटियर, ठीक है जी, आप लोग वहाँ खड़े हो जाए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेडरल सेल्स टैक्स लॉ, और सिंपल है, हम ये बात करेंगे कि उसमें रजिस्टर किसने होना है और उसकी रिपोर्टिंग किसने करना है। लेकिन व्हाट्स सेल्स टैक्स? सो बेसिकली, हाँ जी प्लीज, अगर आप जो है ना जी 4 आप खड़े हो गए, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। बेसिकली सेल्स टैक्स लॉ इज अ पास थ्रू लॉ। अच्छा ठीक, पास थ्रू लॉ, और उसमें बेसिकली ये होता है कि सेल्स टैक्स आप एज ए बिजनेस पर्सन नहीं पे करते, लेकिन आप चार्ज करते हैं, और जो आपके सप्लायर्स हैं वो आपको चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? आप जो हो गई, आपका नाम आप बता दीजिए। मदिया, आप हो गई इंपोर्टर, दैट मीन्स दैट यू आर इंपोर्टिंग सम रॉ मटेरियल और ठीक है। फिर आप अपना नाम बता दीजिए। जुरेश, आप हो गए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, आप होलसेलर हो गए। और 4th हमारे पास कोई और वॉलंटियर कर लीजिए। हाँ जी, आपने करना है, मोस्ट अच्छा।
वॉलंटियर्स को फायदा होगा कि वो अच्छी तरह समझ जाएं कि बाकी लोगों का चैलेंज। और आप जो हो गए जी, प्लीज नाम बता दें। राशिद, आप हो गए रिटेलर। रिटेलर का मतलब हुआ कि फाइनल कंज्यूमर, सोनिया खड़ी है तो आप उनको फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है जी। अब सेल्स टैक्स इज अ पास थ्रू प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि विल स्टार्ट कि आपने इंपोर्ट करना है कोई भी रिसोर्स और यू हैव टू चार्ज जो है ना 17% सेल्स टैक्स जब आप आगे बेचेंगे। तो सपोज करें अगर हम स्टार्ट करें 100 रुपीज की चीज आप इंपोर्ट करती है तो कैसे आप पास करेंगे आप 117, लेकिन 117 आप क्या करेंगे, पे करेंगे कि रिसीव करेंगे, आप लेंगे। तो सेल्स टैक्स लॉ इस तरह काम करता है कि ये सप्लाई चेन है बेसिकली, ठीक है, और इसमें इंपोर्टर से अगर स्टार्ट हुए तो उन्होंने 117 पे सिर्फ आपको दे दिए। अब आप जो है ना मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब आपने जब चीज खरीदी तो आपको 100 रुपीज उसकी कॉस्ट पड़ी और 17 रुपीज जो है ना उसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है। अब आगे आप बेचें होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को तो क्या होगा, आपने 17% चार्ज करना है। हाँ, चार्ज करना है 117 पे आपने 17% चार्ज करना है, विच विल रफली भी 17 रुपीज पे मजीद। तो अगर आप 200 रुपीज की चीज बेचते हैं, 100 की तो उन्होंने बेची ना, आगे आप जाहिर बात है फॉर प्रॉफिट बेचेंगे तो आप अब 200 रुपीज की उनको बेचें। नहीं, दैट इज वेल 17। हाँ, अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं कि क्या होता है। आपकी बात सही है कि इट साउंड्स अनफेयर, लेकिन दिस इज द मैकेनिज्म ना। आपने 100 रुपीज पे आपकी सेल प्राइस थी, कॉस्ट तो शायद आपकी 50 रुपीज हो या 40 रुपीज हो, 100 रुपीज आपकी सेल प्राइस थी, आपने मैन्युफैक्चरर को बेच दिया, आपने साथ में 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया। तो इनको चार्ज किया, इनसे 117 लिए, 17 गवर्नमेंट को दे दी। अब आपके पास 117 है, अब आप 200 की बेच रहे हैं। आगे क्या नाम से बताया था आपने? हाँ, तो उनको बेच रहे 200 की, वो खुश भी बहुत है। तो इस वजह से आप कितना सेल्स टैक्स उनसे चार्ज करेंगे 17% के साथ? हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कितना बनेगा? 34। तो आप कितने की सेल प्राइस होगी आपकी? 234, ठीक है सर। तो सर आप कितने की आपको मिल रहा है? 234 में आपको कितना मिल गए पैसे? 234 आपको मिल गए। तो आपसे सेल्स टैक्स पहले कितना कटा हुआ है और अब बाकी कितना रह गया सेल्स टैक्स आपके पास? 17 रुपीज रह गए। तो वो 17 रुपीज आप अपने वाले वापस रख लेंगे अपने पास और 17 रुपीज गवर्नमेंट को दे देंगे। तो गवर्नमेंट के पास अब कितने पहुंच गए, सेकंड स्टेज तक कितना पैसा पहुंच गया सेल्स टैक्स की सूरत में? 34 रुपीज। 34 रुपीज। सर अब आप आगे चले 500 की बेच लें, 700 कर लेते हैं, 700 कर लेते हैं। वेरी गुड, सही बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस। 700 की करें, जबरदस्त। 700 की आप रिटेलर को बेच रहे हैं तो आप कितना सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे? आप कर ले बेशक कैलकुलेट। 700 पे 17% कितना बनेगा? कोई हेल्प कर दे मुझे। हाँ, टोटल आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी 819 रुपीज, यानी 119 रुपीज आप इनसे लेंगे एज सेल्स टैक्स। और आपसे कितना इसने चार्ज किया था? 34 रुपीज। 34 माइनस 119 कितना हुआ जी? हाँ जी, कितने बच गए? 85 रुपीज आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे, 34 रुपीज आप रख लेंगे। लेकिन अब उस चीज की प्राइस क्या है सर आपके पास? 819 उसकी प्राइस है, जिसमें 119 सेल्स टैक्स है। और अब आप सोनिया को चले कोई डिस्काउंट दे दे, मेरी वाइफ है, तो कितने का बेचेंगे? 1000 का। 1000 का बेच देते हैं। तो ये है कि 1000 का आपने बेचा तो कितना सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे? 170। तो सर 119 शायद ज्यादा था, थोड़ा सा कम शायद 91 था। तो अब आप 1000 पे 17% चार्ज करेंगे तो 117। तो सोनिया को पड़ेगी 1117 रुपीज। और अब सोनिया फाइनल कंज्यूमर है तो सारा का सारा सेल्स टैक्स सोनिया को पे करना है। यानी आपको जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं स्टोर से कहीं से, तो सर प्लीज आजिल, थैंक यू वेरी मच, क्लैपिंग कर दें तो कुछ
अच्छा, तो ये है सेल्स टैक्स। कोई कंफ्यूजन उसके अंदर सर? कोई कंफ्यूजन? परेशानी ज़्यादा होगी कि ऑब्वियसली आप सेल्स टैक्स में कह रहे हैं। इनकम वाइफ में बहुत महंगी चीज महंगी बहुत है। इसकी बीवी। जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन है, सो आई हैव अ company called Nazdeek, and we import items on behalf of the customer. Basically, every package that comes is in the name of the customer. So, technically speaking, Nazdeek is not importing under their name. So now I have to collect. We of course जो चीज़ import होती है उसमें sales tax भी लगता है. So वो जो sales tax मैं customer से ले रही हूँ, that only that has to be reported, right? अब क्या separate double sales tax नहीं लगेगा कि Nazdeek पर सेल्स टैक्स लगे इन ऑन टॉप ऑफ द आइटम टैक्स? नहीं, ऐसा नहीं है। मीन्स के वो जो होगा एक्चुअली होता ही है कि जो कस्टम अथॉरिटी जब आपको कस्टमर को पार्सल पहुंचाती है, तो जो है कस्टमर अथॉरिटी पहुंचाती है पार्सल, तो जो है क्या कहते हैं आपको वो उसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है। तो कस्टमर को एक्चुअली जो मिल रहा है वो है। आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? अच्छा, एक आपके सवाल में आए, बेसिकली ऑल ऑफ यू आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। आप लोग जो स्टार्टअप्स हैं ना, आप लॉ को ना, टैक्स लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। लॉ तो एक स्ट्रक्चर के लिए बना है फॉर स्टैंडर्ड बिजनेसेस, फॉर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इम्पोर्टर्स। आप जाहिर बात है आपका स्टार्टअप जरूर कोई ट्विस्ट ला रहा होगा हर काम में, तो वो ट्विस्ट की वजह से हो सकता है लॉ भी आप पर एप्लीकेबल ना हो रहा हो, या लॉ में आप फुलफिल ना हो रहे हो, आप टैक्सेबल ना बन रहे हो, आप आ ना रहे हो, ठीक है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाई करती है आपके स्टार्टअप के लिए कि मैं भी शायद आज की डिस्कशन को सुन के आप कहें कि यार ये टैक्स के मामले बहुत ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो मे बी देयर इज़ अनदर वे कि आप टैक्स को अवॉइड करने में और टैक्स को इग्नोर करने में बहुत डिफरेंस है। मैं आपके सवाल का एक जवाब देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप टैक्स लॉ को समझ के देख लें कि अच्छा यार टैक्स लॉ तो मेरे पे किसी वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। अब ये सिनेरियो जिस तरह है, सिंस आप किस तरीके से मंगा रही हैं इम्पोर्ट, अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जैसे अली बाबा है या अली एक्सप्रेस है, सॉरी अली एक्सप्रेस से मैं चीज़ मंगाता हूँ तो सेल्स टैक्स मैं ही पे कर, क्योंकि मंगा भी मैं रहा हूँ लेकिन फैसिलिटेट मुझे कौन कर रहा है? अली एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन सेल्स टैक्स वो पे नहीं कर रहे, ठीक है। मे भी शायद वो यहाँ ऑफिस ओपन अप ना करें तो मैं भी शायद पे करना पड़ा। तो लॉ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये अब इंटरेस्टिंग है कि सेल्स है। तो जो बातें यहाँ हो रही हैं उसके अंदर, अगर अहमद साहब आपकी इजाज़त हो तो एक एग्जाम्पल दफ्तर खान की मैं ये दूँ कि ये जो थर्ड लॉ आप देख रहे हैं ये है प्रोविंशियल लॉ ऑन सर्विसेज। इसका मतलब है कि आप अगर कोई सर्विस दे रहे हैं और वो इस कैटेगरी में फॉल करती है तो फिर आप पर ये लॉ अप्लाई होता है। अब दफ्तर खान जो है वो एक को वर्किंग स्पेस है और टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि आया वो होटल है, रेस्टोरेंट है, ट्रैवल एजेंट है, इस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मे भी फॉल कर रहा है, मे भी फॉल नहीं कर रहा, लेकिन वो जो मे भी है उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ रेजिडेंट होंगे तो मे भी आपसे सेल्स टैक्स दफ्तर खान चार्ज ना करे, इस वजह से कि वो एग्जैक्टली उसमें फॉल नहीं करा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तो अगर आप इजाज़त दें तो वो ये डिस्कशन हम फिर स्पेसिफिक सेपरेट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आया आप इंपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। लेकिन अभी हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो है ना डिस्कशन करें। सेल्स टैक्स बता दो जी या नहीं बता दें? अच्छा नहीं, मतलब अगर सेल्स टैक्स आपने पे नहीं करना तो फिर इसका मतलब ये तो मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं। सेल्स टैक्स आप अगर सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर नहीं होंगे लेकिन लॉ के मुताबिक आपको रजिस्टर होना है तो तब आप पर पेनल्टीज लग जाएगी। तो इग्नोरेंस की वजह से मे बी ये वाला लॉ आपको प्रॉब्लम दे। जब आपका स्टार्टअप बिजनेस के स्टेज पर पहुंच जाए या किसी लेवल पे पहुंच जाए तो हो सकता है ये लॉ आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? हाँ जी, आप कर रहे हैं ना, थोड़ा बताएं अपने जी प्लीज। ठीक है, ठीक ठीक है। Exactly.
products on our website. We are also, like when we are selling online, it's a direct B2C. We are a retailer as well. But we are giving to the supermarket, it's B2B. And we are exporting as well. We are exporting only in Middle East, Qatar. So I'm a bit confused whether I'm falling in all 5 categories or do I have to open different companies for importing export? नहीं बिल्कुल. The simple thing to do is, even if you fall in one of these categories, you have to register with the FBR under the sales tax law. You mentioned that your manufacturing और law में लिखा है कि all those, even अगर वो actual manufacturing नहीं भी करते, bottling करते हैं उसको, packaging करते हैं, that also falls in the definition of a manufacturer. And definitely you are importing also, so or exporting also. So this law may be applicable on you. तो उसका ये है कि facts अगर और सामने आ जाए तो ये law, लेकिन कोई भी जो ये condition एक दफ़ा पूरी कर ले, यानी अगर law के नज़दीक वो manufacturer है और या वो importer है या वो exporter है, तो फिर उसने register होना है FBR के साथ, और फिर every month उसने अपनी जो sales की हैं और जो purchases की हैं उससे related एक tax return, sales tax return की डिटेल्स बना के फाइल करना. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे एप्लीकेबल है, मैं कह रहा हूँ कि जब आप पर एप्लीकेबल हो जाए तो फिर आपने एवरी मंथ गवर्नमेंट को अपनी सेल्स एंड परचेजेस यानी कि अपने स्टॉक के बारे में बताना है, क्योंकि फेडरल सेल्स टैक्स लगता है गुड्स पर सिर्फ, यानी कि आपकी जो स्टॉक होता है उस पर सिर्फ लगता है. तो आपके पास डेफिनेटली स्टॉक है और उस स्टॉक को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. तो द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर जो है क्या कहते हैं आप पर ये लॉ अप्लाई होता है तो लॉ सेज समथिंग लाइक दैट कि एवरी मैन्युफैक्चरर whose sale is more than 500,000 या 50 लाख से ज़्यादा अगर साल में वो करता है तो उसने रजिस्टर होना है. एवरी इम्पोर्टर इररिस्पेक्टिव के वो ₹0 की इंपोर्ट करे पूरे साल में उसने जो है ना रजिस्टर होना है. एवरी एक्सपोर्टर जो है इररिस्पेक्टिव जीरो भी हो तो उसने रजिस्टर होना है. तो लॉ ये कहता है. तो अगर आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस आपने कस्टमर्स को आगे वो करनी होगी. रिगार्डिंग द रिटेलर वाला पॉइंट, तो जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग प्लेस में है. एज सच वो फॉल नहीं करते लॉ में, लेकिन गवर्नमेंट अभी रिसेंटली एक ई कॉमर्स के लिए भी लॉ बना रही है जो फिर उसको डिफरेंट टैक्सेशन लॉ में फॉल कराएंगे. तो इस तरह करके हो सकता है. लेकिन यस फ्रॉम ये जो सेल्स टैक्स है जो है ना उससे आप जो है ना उस पर फॉल नहीं कर. लेकिन जो आप फिजिकल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में वो जो है क्या कहते हैं इसमें फॉल कर सकती हैं और आपको रजिस्टर होना पड़ेगा. फिर आपको एवरी मंथ जो है गवर्नमेंट को डिटेल्स देंगे. बेसिकली ये सिर्फ दो पॉइंट्स हैं कि आप लाइबल हैं और वो है आपसे मुराद के जो भी ऐसी डिटेल्स. ठीक है जी. हाँ, सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गुड्स हैं कि सर्विसेज हैं? आपके साथ सर्विसेज है. तो अगर सर्विसेज हैं तो जो अगला लॉ है वो हम जो है क्या कहते हैं वो है सेल्स टैक्स और सर्विसेज. आप देखिए इसमें कहीं पे आपका मेंशन हो कई नाम आपका आ रहा नीचे कॉल सेंटर्स है, डेटा प्रोसेसिंग, लेकिन मैंने एक और चीज़ लिखी है एंड मोर, क्योंकि लॉ टेक्निकल होता है तो बहुत सारी कैटेगरीज अभी स्क्रीन पर तो सिर्फ ऑब्वियसली कर सके कि गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक सर्विसेज ये हैं. तो जो आईटी जो आप सॉफ्टवेयर आप कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसको मतलब सॉफ्टवेयर लोगों के लिए बना रहे हैं जैसे वेब पेज एप्स हो सकती है. ठीक है ना. तो वो जो है ना आईटी वाली जो सर्विसेज हैं वो एज सच फिलहाल जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं मेरे ख्याल से उसमें एज सच फॉल नहीं करें. तो अभी जो है चूँकि वो सारा मीडियम जो है ना ऑनलाइन है, सारा का सारा डिजिटल है, तो जो है क्या कहते हैं उस पर आपको आके कस्टमर अपने आप को रजिस्टर करना और आगे कस्टमर से जो है ना
सेल्स टैक्स चार्ज करना। सेल्स टैक्स चार्जिंग तो आप समझ गए ना, सेल्स टैक्स चार्ज करने का मतलब हुआ कि जब आप इनवॉइस देंगे तो सिंपल इनवॉइस नहीं होगी, उसमें लिखा होगा 1000 रुपीज़ सेल प्राइस और 117 रुपीज़ हाँ PST या GST टोटल उसमें। तो हाँ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का भी होता है, मतलब अगर पाकिस्तानी रेजिडेंट है तो उसको सेल्स टैक्स चार्ज होगा, और अगर इंटरनेशनल नहीं, इसमें जो सेल्स टैक्स के लॉज हैं वो कंजम्पशन बेस्ड है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर है या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है वो कंज्यूम कर रहा है तो उसने सेल्स टैक्स पे करना है। डिप्लोमेट्स को सिर्फ एग्जेम्पशन होती है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनकम टैक्स लॉ में ये होता है, पनामा केस भी यही था कि बेसिकली जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने इनकम टैक्स पे करनी है, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स पाकिस्तान का पे करना है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते या 181 डेज से कम रहते हैं उन्होंने इनकम टैक्स पाकिस्तान का पे नहीं करना। जी So there is a sixth article about architects and contractors. What is the criteria? And we have to pay the gain capital tax also on the profit ratio of our business. जी बिल्कुल। So in what category do we fall as we are running a construction business? And what is our criteria? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक तो यू फॉल एज एन टैक्स पेयर, आपको होना चाहिए इनकम टैक्स लॉ आप पर एप्लीकेबल होना चाहिए। आप क्या है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है या एज ए पार्टनरशिप आप कॉन्ट्रैक्टर है? इंडिविजुअल। तो एज एन इंडिविजुअल आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें आपने सारे I कॉन्ट्रैक्ट। have an ATM number also. I am reserving one file. हाँ ठीक है। How much percentage of the gain capital tax I have to pay in sales taxes understood the active taxes that we have? हाँ जी हाँ जी, वी आर ओनली डिस्कसिंग बेसिकली 3। बाकी जो कैपिटल गेन हो गया, हाँ जी फेडरल एक्साइज हो गया, उनकी लॉजिक यही है, लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, वो है 1-on-1 डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बेसिकली इनकम टैक्स आप पर एप्लीकेबल है और फिर आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फेडरल सेल्स टैक्स आप पे एप्लीकेबल नहीं है, आपने क्योंकि आप गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो फेडरल सेल्स टैक्स है उसमें आप फॉल नहीं करते। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट ना रजिस्टर होना है ना रिपोर्टिंग करनी है। आप फॉल करते हैं, यहाँ देखें कॉन्ट्रैक्टर लिखा है 6 आज 6। तो कहने का मतलब है आपने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना है और फिर एवरी मंथ उनको अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स देनी है। और एक्चुअली टैक्स तो पे नहीं करना, सिर्फ ये है कि अपने वेंडर्स वाला टैक्स रिक्लेम करना है जो वेंडर्स ने चार्ज आपसे किया था, और आगे जो है ना अपने कस्टमर को इनवॉइस जब देनी है तो उसमें सेल्स टैक्स देना है। ठीक है, तो ये जो है कि कहते हैं तीनों लॉज हैं, और फिलहाल रोक लूँगा यहाँ पे और क्वेश्चन है। श्योर जी, प्लीज क्वेश्चंस थे। अच्छा, so अभी आपने you just mentioned that somebody who's not staying in Pakistan for more than 150 days does not have हाँ जी, 181 days, that is roughly 6 months. Okay, so if does that mean that if the company is registered outside of Pakistan, then that company is not liable to pay the corporate tax or income tax? Definitely yes and no, because if it's registered outside and it's not doing any transaction in Pakistan, then it doesn't have to pay any tax, Pakistani tax. But if it's registered outside and some of the transactions are occurring here, so it will only have to pay tax on those transactions which it's conducting here. तो ऐसे है, ऐसा भी नहीं है कि टोटली वो हो, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट रेजिडेंट इज अ पर्सन और अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड नॉन-रेजिडेंट, एंड अ रेजिडेंट इज अ पर्सन हु इज इन Pakistan. So my co-founder is non-resident. He's from Jordan. If what taxes are not Welcome. ठीक है। नहीं, if he has not been in Pakistan for 181 days, so only he has to pay जो है as a non-resident, he doesn't have to file his return. So my case is like I'm on business visa. Okay. And my business visa needs to be like renewed every 3 months. So usually what I do is like after like by the 4th month, I go back to my home country and I apply for a new visa. So this means that I'm not staying more than like 4 months
continuously in the country, but I go and I come again like, on a different visa. And you are earning any money here, for example, business profits, or you're getting a salary here? Because the question is that it doesn't depend kitna time tha, kitna time nahi tha. So if you are earning something, then we can. So that's a twofold question. If he takes salary from the company, Yes. is there income tax on that? Yes. Okay. And if he's earning profit from the company and he's still not staying, The only benefit will be that if he is a non-resident, that means that he has stayed physically in Pakistan for less than 181 days, he will not have to report his earnings of Jordan in Pakistan. That's the only benefit that he will get. He definitely has to report 100% of the salary he's getting here and all the gains he's getting. He has to file his tax. So the non-resident person has only to tell about all those transactions which are happening. So even if, for example, the company is a foreign company and I'm getting the salary from that foreign company, but while I'm resident in Pakistan, my duty is in Pakistan, my salary is coming from a foreign company outside Pakistan. Is it still the case? We'll have to discuss that point on a one-to-one discussion, because there are 3-4 things that maybe we have to look after getting adjustment. So, ठीक है? अच्छा जी प्लीज। तो जो सोशल इनोवेशन लैब से थे और जो और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो do you think that after going through this you have a basic understanding of which of the 3 laws may be applicable on you right now? I would say yes. Thank you. And that is yes means you can say that